Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine, all of you are safe and sound. Beta, let us start our today's lecture, and that is all about your text. And we are reading lesson number 4 from your book 2, and lesson number 4 is End of Term. End of Term by David Dashes, and we have covered more than half of the lesson so far, and rest of the paragraphs are going to be completed today इंशाल्लाह. तो हम देखते हैं बेटा, ये लेसन जो है इसके आखिरी पैराग्राफ पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ, आपको एक इसका थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ, थोड़ा सा इसको समराइज़ कर देती हूँ ताकि वो बच्चे जिन्होंने आज ये लेक्चर लिया है वो थोड़ा सा समझ सकें कि इस लेसन में क्या है. तो बेटा, actually this lesson is written by David Dashes, and David Dashes was a famous English critic, scholar and writer, and he was Scottish basically. He wrote a lot about Scottish culture, Scottish traditions. He wrote an English literature at the same time. तो बेटा हम देखते हैं actually in this lesson the writer has shared his experiences, all his views regarding all is about his general views regarding school life, and we see that what was the attitude of the writer toward holidays. Actually we see that the writer David Dashes, he was not a dull student. He liked schoolwork, he loved to be in a classroom, and he loved his studies, but at the same time sometimes he got fed up out of his routine studies, out of tough competition in school, out of abundant homework, and the feeling of never being relaxed. All these things sometimes perturbed him, and he longed for holidays, to have the real time for enjoyment. जी, हम क्या देखते हैं इसमें कि डेविड डैशेस जो है अपने कुछ एक्सपीरियंसेस अपने स्कूल लाइफ के हवाले से आपसे बयान कर रहा है, और वो क्या कहता है कि जनाब मैं कोई डल स्टूडेंट नहीं था, कभी मैं स्कूल के काम से नाखुश भी नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली ये होता था कि स्कूल में जो बहुत एबंडेंट होमवर्क था, एक्सेसिव होमवर्क था, और स्कूल फुल डे आवर्स जो थे वो जब नज़रों के सामने फैलते थे, और इसके अलावा द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और ये फीलिंग कि आराम करने के लिए, सुकून के लिए कोई टाइम भी मैसर नहीं होगा, फिर स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बाज़ औक़ात बेजार कर देती थी. तो दैट इज़ वाई डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ही यर्नड फॉर हॉलीडेज़, ही यर्नड फॉर वेकेशन टाइम. तो हम देखते हैं, एक तो ये चीज़ इसने शेयर की है, फिर हमें क्या बताया जा रहा है कि he is just telling us about his own feeling regarding weekends, regarding Friday night, Saturday night and Sunday night. He says that the Saturday night, the Friday night basically was the rose colored, was definitely the pleasant night of the week, क्योंकि Friday night को से feeling क्या होती थी कि he was still having 2 solid off days इन हैंड, कि उसे ये मालूम था कि हफ्ता और इतवार जो है उसे कंप्लीट छुट्टी मिल जाएगी, और पूरे दिन ये उसके पास मौजूद है एंजॉयमेंट के लिए. फिर व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द राइटर ऑन सैटरडे. इवन सैटरडे ही फेल्ट हैप्पी, और ही वाज हैविंग अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट. क्या एक्साइटमेंट थी कि ही वाज स्टिल हैविंग अ फुल डे, दैट वाज संडे इन हैंड, कि संडे उसके पास मौजूद होता था एंजॉयमेंट के लिए. बट the Sunday night was full of threat for the Monday, because Monday was the day when he had to move back to his school for studies. कि संडे नाइट के बाद बहरहाल मंडे आना था और उसे स्कूल लौटना था अपने तमाम कामों के सिलसिले में, अपने तमाम पढ़ाई के हवाले से. फिर हम मज़ीद क्या देखते हैं और क्या बातें हमसे शेयर की गई हैं, यानी द राइटर ही डिस्कसेस अबाउट सर्टन और सेवरल रिस्पाइट्स और ब्रेक्स इन रूटीन, कि रूटीन में जो छोटी छोटी छुट्टियाँ आती थी, किसी वक्त अचानक छुट्टी हो जाती थी, स्कूल बंद हो जाता था, और जनाब बड़ा इन्जॉयमेंट का बाइस होता था. ये सब कुछ किसके लिए? राइटर के लिए. वो ये कहता है कि समटाइम्स वी गॉट हाफ डे ऑफ in the school just to watch a football match in the ground, or sometimes there was a dismissal of school or closing of school
2 or 3 hours earlier, just because of some emergency in the country or some crisis period or maybe some festivals or celebrations, तो ये छुट्टियाँ उसको मिल जाया करती थी. Then he was having a mid-day annual an annual mid-term holiday, यानी that was the Monday off. फिर he got skating holidays to enjoy skating during winter days or winter months. तो इसके अलावा हम देखते हैं the real holidays were of summer vacation and also of Easter and Christmas. हमें वो ये बता रहा है कि बाज़ दफ़ा जनाब कोई हंगामी हालात की सूरत में कोई सेलिब्रेशंस की शक्ल में स्कूल में छुट्टी दे दी जाती थी और वो अचानक मिल जाने वाली छुट्टी जो थी वो बहुत ही दिलचस्प महसूस होती थी, बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग थी. फिर हमें बताया जा रहा है कि सही छुट्टियां कौन सी थी. ये जनाब जो ईस्टर के मौके पे छुट्टियां मिलती थी, जो इब्तदा में ईस्टर और क्रिसमस की छुट्टियां 3-3 हफ्तों की हुआ करती थी, वो छुट्टियां रिड्यूस होकर कितनी रह गई बाद में, फोर्टनाइट यानी 2 वीक्स की. स्टिल दे वर हैविंग अ चार्म ऑफ देयर ओन, लेकिन छुट्टियों का अपना ही मज़ा था, उन छुट्टियों का अपना ही लुत्फ़ था. तो ये चीज़ें उसने शेयर की हैं. एक और फीलिंग जो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मिलती है राइटर की, वो ये थी कि इट वाज रियली अ डिसमिल एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ टू गेट अप और टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन मंडे टू मूव टू स्कूल. तो वो कहता है कि मंडे मॉर्निंग को उठना, स्कूल के लिए तैयारी करना हम तीनों बहन भाइयों के लिए बड़ा इज़्ज़तनाक होता था, बड़ा तकलीफ दे होता था. एंड वी वर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग दैट देयर इज़ नो मोर स्लीप, कि अब नींद जो है वो अब मज़ीद हमें नहीं मिलेगी, हम अब नहीं सो पाएंगे. एंड दे वंस हैड अ मेड, एक उनकी मेड हुआ करती थी, फीमेल सर्वेंट हुआ करती थी उनके घर में, और वो एटिक अपर फ्लोर में जब आती और अनाउंस करती कि डेविड, सिल्विया, लाइनल, इट्स टाइम टू गो टू स्कूल, तो उसको क्या महसूस होता था कि इफ़ समबडी वाज कॉलिंग देम टू हेल फॉर डैमनेशन, कि जैसे कोई जहन्नुम का बुलावा आ गया है, कोई जहन्नुम की तरफ हमें धकेला जा रहा है, या कोई खौफनाक ख्वाब महसूस होता था मंडे को जागना और स्कूल की तरफ जाना. ठीक है जनाब. तो ये क्यों वो सारी फीलिंग शेयर कर रहा है, वो ये इसलिए शेयर कर रहा है कि बहुत ज़्यादा जो ओवर वर्क है ना, वो बाज़ दफ़ा एग्जर्शन का बाइस बनता है, एग्जॉस्ट कर देते हैं आपको. आप जो है वो बोर्डम का शिकार हो सकते हैं, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो बाज़ दफ़ा आपको थोड़ी सी राह फरार फिर नज़र आती है छुट्टी की शक्ल में. तो ये एक्सपीरियंसेस जो है बेसिकली उसने शेयर किए हैं. एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम लेसन एंड वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स ऑफ दिस लेसन एंड ऑफ टर्म. तो बेटी एंड ऑफ टर्म का जो इस लेसन का जो नेक्स्ट पेज है उसकी तरफ आ जाते हैं और मज़ीद देखते हैं व्हाट मोर थिंग्स आर शेयर्ड बाय राइटर विद द रीडर्स के साथ क्या मज़ीद चीज़ें जो हैं वो शेयर की जा रही हैं. जी वो कहता है बट द हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़. तो हकीकी मानों में विच हॉलीडेज़ वर डिज़ायरेबल और विच ही लाइक द मोस्ट, कौन सी छुट्टियाँ राइटर को बहुत ज़्यादा पसंद थी. दीज वर समर हॉलीडेज़, ये गर्मियों में मिलने वाली 2 माह की छुट्टियाँ थीं. द 2 months वेकेशन वी कट इन समर टाइम, यानी ये वो छुट्टियाँ थी जो हमें मौसम गर्मा में 2 माह के लिए दी जाती थी. बट इट वॉज द मंथ्स टूवर्ड्स विच द होल ईयर राउंड. हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ दैट दीज वर द 2 months अराउंड विच द होल ईयर मूव्ड राउंड. ये वो 2 महीने थे जिनके गिर्द जो है सारा साल जो था इन दोनों महीनों के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता था. यानी दीज वर द holidays dreamt of, or these were the holidays longed for by the writer and by so many students. We can say कि बच्चे जो हैं इन छुट्टियों की दरअसल बड़ी तमन्ना करते हैं, बड़ी ख्वाहिश करते हैं, because this is the time when they can give practical shape to many of their dreams. क्योंकि ये वो मौका होता है 2 माह की छुट्टियों का जब वो अपने बहुत से ऐसे ड्रीम्स को प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं जो वो पढ़ाई के दौरान सोचते रहते हैं कि हमें ये भी करना है, ये एक्टिविटीज़ भी हमें करना है, हमें ये काम भी करना है. तो दे रियली गेट अ सफिशिएंट टाइम, और सफिशिएंट टाइम इज़ देयर इन देयर sufficient time is in their hand to fulfill their heart desires. तो वो अपने दिली ख्वाहिशात को इस छुट्टियों में पूरा कर सकते हैं.
ठीक है जी बेटे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं, दैट इज 2 months seemed a long time in those days. 2 months seemed a long time in those days. तो ये 2 माह उस वक्त जो है बहुत ही लंबा दौरानिया महसूस हुआ करता था। Indeed, I used to have the feeling that for all practical purposes I could look forward. So we are having a word here, look forward. So what does it mean? Let's see. Look forward. Look forward means to wait anxiously. To wait anxiously, to wait with pleasure. यानी खुशी के साथ किसी वक्त का इंतज़ार करना, टू वेट विद प्लेजर, लुक फॉरवर्ड। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो हमें बता रहा है कि आई कुड लुक फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी। इट्स नॉट फैसिलिटी, द वर्ड इज फेलिसिटी, फेलिसिटी एंड परमानेंट। तो लेट्स सी देयर मीनिंग। परमानेंट, परमानेंट मीन perpetual, perpetual, or it means continuing, lasting, and it also means constant, constant यानी मुस्तकिल, perpetual, continuing, lasting or constant. All these are the meanings of permanent. Permanent के synonyms हैं। और another word is felicity. Felicity. Felicity mean intense happiness. बहुत ज़्यादा खुशी, happiness, or you can say delight. तो felicity mean intense happiness or delight. So let's see what he says. 2 months seemed a long period in those days. Indeed, actually, in fact, dar hakikat. I used to have the feeling that for all practical purposes, I could look forward to a period of permanent felicity. कि उस ज़माने में ये जो 2 माह थे छुट्टियों के, ये बहुत लंबा अरसा दौरानिया महसूस हुआ करता था और मैं ये फीलिंग रखा करता था कि मेरे तमाम जो पर्पसेस हैं, जो मकासद हैं, दे आर गोइंग टू टेक अ प्रैक्टिकल शेप और फॉर्म, कि अब उन्हें हकीकी रूप मिलने वाला है। और मैं बड़ी बेचैनी से इस परमानेंट फेलिसिटी यानी दायमी मुसरत वाले इस पीरियड का, इस दौरानिए का इंतज़ार किया करता था। यानी आई लुक्ड फॉरवर्ड एंशियसली फॉर द टाइम टू कम सो दैट आई कुड बी एबल टू अवेल और टू गेट परमानेंट हैप्पीनेस out of these holidays, and I could be able to give practical form or shape to all my dreams, कि मैं अपने तमाम ड्रीम्स को हकीकी रूप इन छुट्टियों में देना चाहता था। I would walk home across the meadows. Meadows mean here, yes, grassy field, grassy fields. ग्रेसी फील्ड्स क्या होगा? चरागाह को कहा जाएगा, खेतों को कहा जा सकता है, चरागाहों को कहा जा सकता है। इट्स ग्रेसी फील्ड्स और ग्रेसी लैंड्स, यू कैन से ग्रेसी फील्ड्स और लैंड्स, मेडोज। जी बेटा, I would walk home across the meadows if in the July sunshine. तो जुलाई का महीना होता था और धूप की तमाज़त भी होती थी और जनाब मैं क्या करता था, आई यूज़ टू वॉक टू माई होम आफ्टर क्रॉसिंग और मूविंग थ्रू मेडोज़ और ग्रासी प्लॉट्स। मैं सब्ज़ाज़ारों से गुजर कर अपने घर की तरफ रुख करता था जुलाई के इस महीने में। वियरिंग माई समर यूनिफॉर्म, समर क्लॉथ्स, और मैंने अपना समर क्लॉथ, समर यूनिफॉर्म पहना होता था। एंड दैट वॉज ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स, यानी ग्रे क्रिकेट शर्ट्स पहनी होती थी मैंने और ग्रे कलर का, सुरमई कलर की शॉर्ट्स लेकर पहनी होती थी। एंड रेड वेटसन्स ब्लेजर। वेटसन क्या है? वेटसन बेसिकली इट इज़ द नेम ऑफ अ कंपनी।
Vetsun, it's the name of a company. Name of a company. Blazer, it means कोट, स्पोर्ट्स कोट भी हो सकता है, कोट, स्पोर्ट्स कोट। तो जनाब मैंने अपने वो शॉर्ट्स पहनी होती थी ग्रे कलर की और ग्रे क्रिकेट शर्ट पहनी होती थी, शॉर्ट्स पहनी होती थी और रेड जो था मेरा वेटसन ब्लेज़र था, कोट था, वो पहना होता था। ठीक है बेटे। और एंड सेवर माई हैप्पीनेस, सेवर मीन टू enjoy, to relish. Savor mean to enjoy. It also mean to relish. लुत्फ उठाना, ठीक है। एंड relish, RELISH, and savor my happiness with conscious relish. Conscious mean, बेटे अभी मज़ीद मीनिंग लिखते हैं, ये मीनिंग एक दफ़ा से गो थ्रू कीजिएगा ताकि मैं फिर इसको रेस करूं, मज़ीद मीनिंग आपके साथ शेयर करूं। जी बेटा, लुक फॉरवर्ड मीन टू वेट एंशियसली और टू वेट विद प्लेजर। एंड यानी बहुत बेचैनी से, बहुत खुशी से इंतज़ार करना, मुंतज़िर रहना। परमानेंट मीन दायमी, मुस्तकिल। परपेचुअल, कंटिन्यूइंग, लास्टिंग एंड कॉन्स्टेंट, मुस्तकिल। फेलिसिटी मीन इंटेंस हैप्पीनेस, डिलाइट, बहुत ज़्यादा खुशी, लुत्फ। मेडोज मीन ग्रासी प्लॉट्स और फील्ड्स और लैंड्स, सब्ज़ाज़ार, चरागाहें। वेटसन जो है, इट इज़ द नेम ऑफ अ कंपनी। ब्लेजर मीन कोट और स्पोर्ट्स कोट को कहा जाएगा। सेवर मीन टू एंजॉय, टू रिलिश, लुत्फ उठाना। जी बेटी, यकीनन आपने ये वर्ड्स जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। क्योंकि अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो मज़ीद इसमें जितने भी वर्ड्स मौजूद हैं वो मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप उन्हें भी साथ साथ नोट कर लें। जी बेटे, आवर वेरी नेक्स्ट वर्ड इज़ after savor my happiness with conscious relish. Conscious mean known, intentional, known, यानी इरादी, जिसे कहते हैं इरादी, जिसे शऊरी इरादी कहा जाएगा। और conscious mean intentional, known. Next word is relish. Relish mean taste, flavor, मज़ा, लुत्फ। तो बेटे इसको देखते हैं। relish mean taste and flavor. तो wearing my summer school clothes of grey cricket shirt, grey shorts and Watson's blazer and savor my happiness, यानी मैंने अपने गर्मी का यूनिफॉर्म पहना होता था, ग्रे शॉर्ट्स थे, ग्रे क्रिकेट शर्ट थी और वेटसन ब्लेजर था। एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रिलिश, और बड़े ही शऊरी तौर पर, बड़े ही इरादतन अपने इस लुत्फ से अपने आप को दोबाला किया करता था, इस लुत्फ से, यानी इस एहसास से, इस कैफियत से मज़ा उठाता था और खुश होता था। ठीक है, क्या खुशी से मिल रही है? समर वेकेशन उसके पास आ चुकी है, 2 मंथ्स ऑफ आ चुके हैं, तो वो इसको एंजॉय कर रहा है, इसको रिलिश कर रहा है भरपूर तरीके से और बहुत कॉन्शियस है अपने इस लुत्फ़ के हवाले से, अपने इस मज़े के हवाले से। वो बहुत कॉन्शियस है कि मेरे पास 2 सॉलिड मंथ्स आ गए हैं और उन्हें मैं हाउ एम आई गोइंग टू यूटिलाइज दीज हॉलीडेज़। तो ही वॉज definitely he might be having some sort of planning in his mind regarding how to spend his holidays of 2 months. उसके साथ में कोई ना कोई प्लानिंग होती होगी कि इन मंथ्स को कैसे गुजारना है। तो ये सारा साल प्लानिंग चलती रहती होगी और अब वो खुशगवार मूड में है। तो आपको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर दैट व्हाट वाज द राइटर्स समर यूनिफॉर्म। तो राइटर का समर यूनिफॉर्म क्या था? Writer's summer uniform was grey cricket shirt, grey shorts and red Watson's blazer. That is its answer. ये इसका सवाल का जवाब बनेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। I could hardly believe. Believe mean to trust. Hardly means scarcely. Hardly mean scarcely, बामुश्किल। And
believe mean to trust, यकीन करना। जी बेटे, आपके पास ये दो वर्ड आए, हार्डली एंड हार्डली मीन्स scarcely, believe mean to trust। जी, I could hardly believe that 3 strenuous, another word is strenuous, it's written over here। और strenuous का मतलब क्या होता है? tiring, taxing, थका देने वाले और बहुत ही टफ, बहुत ही सख्त किस्म का दौरानिया, अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम, अ वेरी बोर्डनसम टाइम, अ वेरी टॉयलसम टाइम, के बहुत ही थका देने वाला, बहुत सख्त हार्श पीरियड कैन से, कि बहुत सख्त किस्म का दौरानिया। जी बेटे, देखते हैं। आई कुड हार्डली बिलीव दैट 3 strenuous school terms had indeed rolled away। rolled away mean past, गुज़र जाना। तो मुझे बहुत बामुश्किल इस बात पे यकीन आता था कि मेरे 3 वो जो मुशक्क़त तलब टर्म्स थी, बहुत ही जिनमें मैंने मेहनत की है, जिन टर्म्स में इवेंचुअली आखिरकार वो रोल्ड अवे हो गई हैं, वो टाइम पढ़ाई का गुज़र गया है। मुझे यकीन ही नहीं आता था ये सोचकर। जी बेटे, एंड द longed for and dreamed of, longed for mean wished for, it means wished for, कि जिनकी ख्वाहिश की जाए। और the next word is dreamed of, dreamed of mean imagined, तस्वुर किया जाना। तो मुझे बहुत ही मुश्किल से यकीन आता था कि वो टाइम आ चुका जिसका मैं ख्वाब देखा करता था, जिसकी मैं ख्वाहिश किया करता था। ऑफ ऑलमोस्ट इट सीम्ड एट टाइम्स, कि कभी कभार मुझे ये ख्वाब ही लगता था, हसीन की छुट्टियाँ भी आएंगी। मिथिकल समर हॉलीडेज वर एट हैंड। जी बेटा, मिथिकल एंड एट हैंड, ये वर्ड्स मुझे लिखना है। इन वर्ड्स को प्रीवियस वालों को दोहरा देती हूँ। कॉन्शियस मीन इंटेंशनल, नॉन शऊरी, इरादतन। रेलिश मीन टेस्ट और फ्लेवर, लुत्फ और जायका। हार्डली, स्कार्सली, बामुश्किल। बिलीव, टू ट्रस्ट, यकीन करना। स्ट्रेनुअस मीन टायरिंग, टैक्सिंग, थका देने वाले, दिक्कत तलब, मुशक्क़त तलब। रोल्ड अवे, पास्ट, गुजर जाना। लॉन्ग्ड फॉर, विश्ड फॉर, ख्वाहिश करना। ड्रीम्ड ऑफ, इमेजिन्ड, जिनका तसव्वुर किया जाए। जी बेटे, ये वर्ड्स यकीनी तौर पे आपने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट वर्ड्स की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास क्या हैं? जी, मिथिकल समर हॉलीडेज वर एट हैंड। मिथिकल, हम देखते हैं मिथिकल का मतलब क्या होगा? इट मीन्स इमेजिनरी, अनरियल, फिक्टिशियस, ठीक है। तो इट मीन्स इमेजिनरी एंड अनरियल और फिक्टिशियस, गैर हकीकी, जिसका हकीकत से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आ रहा। एट हैंड मीन नियर, अप्रोचिंग, नियर और अप्रोचिंग, करीब आना। तो बेटा, इसमें हमें बताया जा रहा है कि वो छुट्टियां जिसके बारे में राइटर सोचता है कि शायद इमेजिनरी हैं, तख़य्युलाती हैं, कभी आएंगी या नहीं आएंगी, और अब क्या फीलिंग है जब वो आ चुकी हैं कि दीज आर एट हैंड, कि फिर आखिर वो पहुंच गई हैं। वो तमाम छुट्टियां, आई लॉन्ग्ड फॉर और विश्ड फॉर और ड्रीम्ड ऑफ, ये सारी छुट्टियां क्या हैं? दीज आर अप्रोचिंग नाउ, दीज आर नियर। अब वो छुट्टियां उसको मिल गई हैं। Unspoiled as yet, unspoiled mean unharmed, complete, कि ये छुट्टियां जो हैं अभी तक कंप्लीट। जाहिर है जिस दिन उसे छुट्टियां होंगी वो घर वापस आ रहा है बच्चा, तो सारी की सारी छुट्टियां उसके हाथ में हैं। अनस्पॉइल्ड है, अनयूज्ड है और अनहार्म्ड है और कंप्लीट है, सारी की सारी उसके हाथ में मौजूद है। लाइंग इंटैक्ट, intact mean unused,
यानी सारी की सारी अभी बगैर इस्तेमाल किए हुए हैं, सारी छुट्टियां हाथ में मौजूद हैं. एंड प्रॉमिसिंग जस्ट अहेड. प्रॉमिसिंग मीन ऑस्पिशियस. Promising, it means encouraging and auspicious. Blissful, खुशगवार. यानी ये सब की सब ये जो खुशगवार छुट्टियां हैं आगे आने वाली थी, तो ये फीलिंग जो थी दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर फॉर द राइटर टू हैव ऑल दिस फीलिंग्स कि मेरी सारी छुट्टियां जो हैं अनयूज्ड हैं, इंटैक्ट हैं, अनस्पॉइल्ड हैं, और ये ऑस्पिशियस टाइम जो है इट इज़ अप्रोचिंग, इट इज़ नियर टू इन्जॉय. जी बेटे नेक्स्ट देखते हैं. इट ऑल सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू. बेटे टू गुड टू बी ट्रू का मतलब लिखते हैं टू गुड टू बी ट्रू. इट मीन्स डिफिकल्ट, impressive and difficult to believe in. It also means marvelous or wonderful. तो बेटे too good to be true means idiomatic phrase है. इट मीन्स इम्प्रेसिव एंड डिफ़िकल्ट टू बिलीव इन. बहुत ही मुतासिर कुन, बहुत ही शानदार चीज़ जिस पे यकीन करना मुश्किल हो जाए. मार्वलस और वंडरफुल, कोई चीज़ जो बहुत ही मार्वलस, शानदार है, स्प्लेंडिड है, वंडरफुल है, हैरत अंगेज़ है. तो हमें बताया जा रहा है इट ऑल सेम टू गुड टू बी ट्रू कि ये सारी चीज़ें जो थी इन पे यकीन करना बाज़ दफ़ा मुश्किल लगता था. इतनी मार्वलस थी ये फीलिंग, इतनी शानदार ये फीलिंग थी छुट्टियों की कि इसको बयान करना जो है, यानी इट इज़ द फीलिंग इज़ इनफैक्ट इनडिस्क्राइबेबल, इनएक्सप्रेसिबल. तो ये फीलिंग जो है इनएक्सप्रेसिबल है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. जी बेटा दीज वर ऑल अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द राइटर अबाउट हॉलीडेज़ विच ही यूज्ड टू एंजॉय ड्यूरिंग हिज स्कूल लाइफ. यहाँ तक उसने ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया. अब एक नई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा है, वो क्या है कि विशेस डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ. कि ज़िंदगी में ख्वाहिशात जो है वो सारी की सारी पूरी नहीं होती. वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. तो नॉट नेसेसरीली दैट ऑल आवर विशेज़ और डिज़ायर्स कम ट्रू, कि हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, ये मुमकिनात में से बाज़ दफ़ा नहीं होता. आई नो दैट, और मैं इस चीज़ को जानता था. और देखते हैं कि राइटर की क्या विशेज़ हैं जो कि फुलफ़िल नहीं हुई हैं. I knew that all my early childhood I longed desperately. Longed mean wished. Longed mean wished यानी कि ख्वाहिश करना, और desperately mean in despair. It mean in despair. मायूसी के आलम में भी हो सकता है इसका मतलब, या फिर seriously बहुत ही संजीदगी से, और ग्रेवली का मतलब भी होगा संजीदगी से. तो हमें इसमें जो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि इट ऑल seemed too good to be true and wishes did not come true in this life. I knew that all my early childhood I longed desperately for a bicycle. So what was the desire of the writer in his early childhood? Actually he yearned for a bicycle. He wanted to have a bicycle of his own. वो चाहता था कि मेरे पास अपनी बाईसाइकिल हो जब वो बहुत छोटा था. ठीक है, ट्राईसाइकिल, सॉरी इट्स नॉट बाईसाइकिल. इन हिज वेरी अर्ली चाइल्डहुड ही यर्न्ड फॉर अ ट्राईसाइकिल. वो चाहता था मेरे पास 3 पहियों की एक ट्राईसाइकिल हो जाए. बचपन में सोचा करता था, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड. और मेरे वालिदैन जो है वो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सके मेरे लिए. यानी अफोर्ड मीन ही वॉज नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू परचेज अ ट्राईसाइकिल. ही वॉज नॉट हैविंग affordability or not enough money or sufficient amount to purchase it. ठीक है, तो उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, उनके पास वसाइल नहीं थे, सकत नहीं थी कि वो ख़रीद सकते. एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफर्ड टू अ बाईसाइकिल. ट्रांसफर्ड मीन कन्वर्टेड और चेंज्ड. बेटे इसके मीनिंग लिखते हैं, उससे पहले प्रीवियस बोर्ड को एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं. इसको एक देख लेते हैं, इसका एक एनालिसिस कर लेते हैं. मिथिकल मीन इमेजिनरी, अनरियल, फिक्टिशियस, गैर हकीकी.
जिस पे यकीन ना आए। एट हैंड, नियर, अप्रोचिंग, जो करीब हो, बढ़ रहा हो, नज़दीक हो चीज़। अनस्पॉइल्ड, अनहार्म्ड, कंप्लीट, मुकम्मल, और जिसे अभी कोई नुकसान ना पहुंचा हो। इंटैक्ट, अनयूज्ड, अभी बगैर इस्तेमाल के। प्रॉमिसिंग मीन इनकरेजिंग, ऑस्पिशियस, बहुत ही हौसला अफजा और बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही बाबरकत और बहुत ही खूबसूरत, प्लेजेंट। टू गुड टू बी ट्रू मीन इम्प्रेसिव एंड डिफ़िकल्ट टू बिलीव इन, बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ जिस पे यकीन ही ना आए, मार्वलस और वंडरफुल, बहुत ही हैरान कुन और ज़बरदस्त चीज़। लॉन्ग्ड मीन विश्ड, ख्वाहिश करना। डेस्परेटली मीन इन डिस्पेयर, मायूसी के आलम में भी हो सकता है। सीरियसली, ग्रेवली, यानी संजीदगी से, ये भी इसका मतलब हो सकता है। जी बेटे, इसको करते हैं इरेज, और नेक्स्ट मीनिंग जो है वो मैं आपको लिख कर देती हूँ। अभी आपके साथ बात हुई, जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें आपके पास जो द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस वाज, yes, the writer he yearned for a tricycle which his parents couldn't afford for him. फिर I knew that all my early childhood, yes, and later the wish was transferred to a bicycle. बाद में इसकी ख्वाहिश ट्राईसाइकिल से बाईसाइकिल की हो गई, और ट्रांसफर्ड का मतलब कन्वर्टेड। ट्रांसफर्ड मीन चेंज्ड, कन्वर्टेड, और बाद में ये ख्वाहिश क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई कि मेरे पास एक बाईसाइकिल आ जाए। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड। परमानेंटली मीन कॉन्स्टेंटली, परमानेंटली, कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन होपलेस। और जनाब बड़े होकर जब उसकी ख्वाहिश ये हुई कि ट्राईसाइकिल की जगह बाईसाइकिल उसे मिल जाए, तो ये ख्वाहिश भी उसकी जो है मायूसी की नज़र हो गई, यानी ही कुडंट अफोर्ड इट इवन। फिर हमें एक और चीज़ बताई जा रही है। आई बॉट माई फर्स्ट bicycle for myself when I was 21 with the prize money I had won at Edinburgh University. कितनी अच्छी बात वो कह रहा है कि जब मेरी उम्र 21 साल की हुई तो एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से मुझे कुछ प्राइज़ मनी, कोई कैश प्राइज़ मुझे मिला, कोई प्राइज़ मुझे मनी मिले, और मैंने उस अमाउंट से अपनी फर्स्ट बाईसाइकिल जो है उसे परचेज़ किया। तो व्हेन डिड द राइटर एक्चुअली when did he buy his first bicycle, and how did he buy it? So when he was 21 years old, he bought his first bicycle and he purchased it out of the money or the cash prize he won from Edinburgh University. तो एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से उसको जो कैश प्राइस मिला उससे ये बाईसाइकिल ख़रीदा गया। जी, ये आपके पास अहम क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स विद एम्प्टी पॉकेट्स, कि अक्सर मैं जो कैंडी शॉप थी, जो स्वीट शॉप्स थी, वहाँ एम्प्टी पॉकेट के साथ खड़ा हो जाया करता था। लॉन्गिंग फॉर, डिज़ायरिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर मीन बेटी, लॉन्गिंग फॉर, डिज़ायरिंग फॉर यानी ख्वाहिश करना, डिज़ायरिंग फॉर। Well beta, how often had I stood outside sweet shops with empty pockets longing for a penny? penny क्या है बेसिकली? penny जो है ये भी लिखते हैं यहाँ पर PENNY, that is a currency, British bronze coin। जी बेटे, यहाँ लिखते हैं penny, PENNY। penny means currency, Formerly, a British, sorry, I would rather like to write it down here like a British bronze coin used formerly, used in past। जी बेटा, penny basically is a currency, it's a British bronze coin used in past। penny जो है वो एक करेंसी है, उसको कहा जाएगा, ब्रिटिश करेंसी को, कॉइन्स को कहा जाएगा। तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि longing for a penny or two,
टू मटेरियलाइज समहाउ, मटेरियलाइज का मीनिंग लिख लीजिएगा। टू मटेरियलाइज मीन्स टू गिव अ शेप और फॉर्म, कोई शक्ल देना। टू गिव अ शेप और FORM, form, to give a shape or form. Materialize mean also to happen or occur, कोई चीज़ होना, रूनुमा होना। जी बेटे, to materialize somehow, तो बाज़ दफ़ा वो क्या कहता था कि इन माई अर्ली चाइल्डहुड आई यूज़ टू स्टैंड आउटसाइड द स्वीट शॉप्स थिंकिंग दैट the shopkeeper might provide me or give me some candies free of cost, because I was having empty pockets, क्योंकि मेरी जेबें खाली हुआ करती थी। तो मैं एक जो स्वीट शॉप्स हैं उनके बाहर खड़ा हो जाया करता था इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है शॉपकीपर जो है वो मुझे कोई मेरे ख्वाबों को यकीनी रूप मिल जाए। और मैं ये डिज़ायर करता था कि काश मेरे पास कोई पेनी और 2 पेनीज़ होते और ये पैसे होते मेरे पास, और मैं अपने ख्वाबों को मटेरियलाइज़ कर सकता, हकीकत की शेप दे सकता, हकीकत का रूप दे सकता और मुझे ये कैंडीज मिल जाती। और hung on the outskirts of a crowd, hung on mean, yes बेटा यहाँ लिख देते हैं hung on, persist, it mean persist on, it also mean hold on to, यानी बाज़ दफ़ा मैं इस चीज़ पर भी होल्ड ऑन करता, इसरार कर जाता कि hang on the outskirts mean outer edge को कहा जाएगा बैरूनी कोना। hang on का मतलब स्टेड भी हो सकता है, स्टेड ठहर जाना, persist on, hold on to, stayed। जी बेटा, आपके पास मीनिंग आगे ट्रांसफर्ड, चेंज्ड, कन्वर्टेड, परमानेंटली, कॉन्स्टेंटली, डिसअपॉइंटेड, होपलेस, longing for, desiring for, penny, currency, a British bronze coin used in past, materialize, to give a shape or form, या to happen or to occur। hang on, persist on, hold on to, stayed। जी बेटे, ये मीनिंग थे। नेक्स्ट लाइन, इसी लाइन में मज़ीद कुछ वर्ड्स मौजूद हैं, उनके मीनिंग आपको बताने के बाद फिर इसको मैं ट्रांसलेट भी कर देती हूँ। जी बेटे, आपके पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आउटस्कर्ट्स। यहाँ लिखती हूँ मैं आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट्स मीन आउटर एज, सबर्ब्स होते हैं मज़ाफ़ाती इलाके, टाउन्स या सिटीज़ के आसपास के इलाकों को सबर्ब्स कहा जाता है, आउटस्कर्ट्स, और आउटर एजेस को भी कहा जाता है। आउटस्कर्ट्स ऑफ अ क्राउड, राउंड एन आइसक्रीम बैरो मीन ट्रॉली। बैरो क्या होगा? ट्रॉली, वो जो मखसूस ट्रॉली जो आइसक्रीम वाला लाता है, ठीक है। बैरो मीन आइसक्रीम ट्रॉली। wondering, WONDERING, wondering mean to be amazed, हैरान होना, to be amazed, thinking of, कोई बात सोचते हुए, thinking of, surprised at, हैरान होते हुए। जी बेटा, wondering whether the ice cream man would be miraculously, जी बेटे, the word is miraculously means supernaturally, ठीक है। और it also means in a strange or sudden way, in a strange or sudden way, यानी अचानक ही,
अजीब पुरस्कार अंदाज में। तो क्या करता था, सम टाइम ही यूज टू स्टैंड near the ice cream trolley and he visualized, he imagined that miraculously the ice cream man might hand him over some lollies or sliders or some ice creams। ठीक है जी, यहाँ से देख लेते हैं, मज़ीद इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। एंड वुड बी मिरेकुलसली इंस्पायर्ड टू ऑफर मी अ कॉर्नेट और अ स्लाइडर फ्री। कॉर्नेट क्या होगा, CORNE, कॉर्नेट मीन आइसक्रीम, एंड स्लाइडर अगेन इज आइसक्रीम विद वेफर्स, आइसक्रीम विद वेफर। तो वो ये समझता था, बाज़ दफ़ा वो किसी आइसक्रीम ट्रॉली के पास खड़ा हो जाता था, हजूम के पास और किनारे पर, और सोचता था कि शायद आइसक्रीम वालों को मुझ पर तरस आ जाए और मौजूदाना तौर पे कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई स्लाइडर, कोई वेफ़र, कोई आइसक्रीम विद वेफ़र मिल जाए, कोई कॉर्नेट जो है मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये आइसक्रीम मैन दे दे। दिस थिंग्स नेवर हैपेंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनलकली दिस नेवर हैपेंड एवर, कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। द फ्यू पेंस ऑफ वीक, पेंस अगेन अ करेंसी, द ब्रिटिश ब्रॉन्ज क्वीन, pocket money we received was to be put into a money box and saved। तो क्या है, whatever money he used to get during his childhood that was kept and saved into a box। कि उसे जो बचपन में पॉकेट मनी मिला करता था, वो क्या करते थे इस मनी को, कि वो इस पॉकेट मनी को, राइटर कह रहे हैं कि हम लोग, मैं और मेरे बहन भाई, हम इसे एक मनी बॉक्स में सेव कर दिया करते थे। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, लॉयनर, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड for ourselves। So that is the reason that all the three brothers and sisters, they couldn't spend even a penny for themselves, for their own self। कि बचपन में यही वजह है कि मनी सेविंग की वजह से अपनी ज़ात पर उन्होंने कभी कोई पैसे खर्च ही नहीं किए, इन तीनों बहन भाइयों ने, यानी डेविड, लॉयनल और सिल्विया ने। Yet summer and the summer holidays did come। फिर क्या है जनाब, समर, मौसम गर्मा भी, और मौसम गर्मा की हॉलीडेज़ जो है वो भी आ जाती। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल जो है वो उसका साल इख्तिताम पजीर हो जाता। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूट केसेज आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस। तो व्हाट इज़ नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस? ये जो नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस है, दिस इज़ द राइटर्स रेजिडेंस। राइटर का रेजिडेंस है, राइटर का एड्रेस है, उसकी रेजिडेंस है, अपने घर का वो पता बता रहा है। और ट्रंक्स क्या होता है? ट्रंक्स का मतलब बॉक्सेस। बॉक्सेस क्या होता है? संदूक कहा जाएगा, बॉक्सेस। और यहाँ पर सूट केसेस लिखा हुआ है। सूट केसेस क्या होता है? सूट केसेस मीन a case with a handle, a case with a handle to carry things, to carry things। यानी एक बॉक्स, चेस्ट, ट्रंक्स चेस्ट भी हो सकते हैं जी बेटा, यानी एक बॉक्सेस, इस तरह के सूट केसेस जिसमें हैंडल मौजूद हो, चीज़ों को उसमें लाया जा सके। तो क्या होता था, व्हेन द हॉलीडेज रियली अप्रोच्ड, तो व्हाट डिड द राइटर डू? राइटर क्या क्या करता था? ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली मेम्बर्स, टेकिंग ऑल द सूट केसेस एंड बॉक्सेस विद दैम, दे स्टूड आउटसाइड ऑफ देयर रेजिडेंस। ठीक है, वेटिंग फॉर व्हाट? वो अपनी रेजिडेंस से बाहर निकलते, अपने सूट केसेस लेकर खड़े हो जाते, वेटिंग फॉर द टैक्सी। और टैक्सी का इंतज़ार क्या करते थे? बाहर खड़े होकर घर से बाहर। ग्लोरियस व्हीकल, ग्लोरियस मीन स्प्लेंडेड, GLORIOUS। ग्लोरियस मीन स्प्लेंडेड, मार्वलस, मार्वलस, स्प्लेंडेड, मार्वलस, शानदार। टैक्सी को बड़ी शानदार सवारी समझा जाता था उन दिनों। दैट वाज टू कन्वे मीन टू कैरी, ले जाना। द फैमिली एंड इट्स लगेज, लगेज मीन बैग एंड बैगेज, तमाम बिलोंगिंग्स। लगेज मीन बैग एंड बैगेज बिलोंगिंग्स to the railway station। So this taxi eventually had to take the family along with their suitcases and boxes to the railway station so that they could move onwards, they could move ahead to other towns for some recreation purpose। तो ये टैक्सी सारी फैमिली को उनके सामान समेत रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया करती थी ताकि ये
कहीं आउट स्टेशन अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड कर सकें फैमिली, और वहाँ सही तौर पर जो है रिक्रिएशनल मोमेंट उनको मैसर आए। ठीक है बेटा, ये तो दैट वाज द होल लेसन। आपने ये सारा पढ़ लिया, कंप्लीट इसको पढ़ लिया, यानी द लेसन इज़ completed now, and we will do inshallah its exercise, its synonyms and exercise including question answers in our next lecture. तो बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग को भी देख लीजिएगा। अभी भी जो लिखे हुए हैं उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। आउटस्कर्ट्स मीन आउटर एज, सबर्ब्स मज़ाफ़ाती इलाके, बैरूनी हिस्सा, बैरो मीन आइसक्रीम ट्रॉली, वंडरिंग टू बी अमेज्ड, थिंकिंग ऑफ समथिंग कि किसी बारे में सोचना, हैरानगी का इजहार करना। मेडिकलिसली मीन सुपर नेचुरली, इन अ स्ट्रेंज और सडन वे, मोजज़ाती तौर पर अचानक ही। कॉर्नेट मीन आइसक्रीम एंड स्लाइडर अ टाइप ऑफ आइसक्रीम विद वेफर। ट्रंक्स मीन बॉक्सेस, chests. Suitcases, a case with a handle to carry things, and glorious means splendid, marvelous, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा आपने बैग एंड बैगेज पढ़ा, इट मीन्स ऑल बिलोंगिंग्स, तमाम चीज़ें। बेटा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लेसन आपका आज का ख़त्म हुआ। हियर I would like to say that it is the end of this lesson, and before I leave I would say something more. Beta, take care of yourself and your family, stay home and stay safe. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you very much. Allah Hafiz.